Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is online support program 2020 round 2 week 1 and this presentation is made for class 8 subject English and this is your teacher Halima Sadia from APS Damial Road, Rawalpindi. Students, this week we are going to cover these topics. We will start with unit number 5 of English Ahead student book and read page number 58 and 59 as vocabulary 1 and page number 62 will be taught as language focus 1. Then we will come to the workbook and page number 37 will be taught as vocabulary 1 and 38 and 39 will be taught as reading section. And when we come to the English literature, novel Moby Dick, the unit number 5 of novel Moby Dick will be taught in this week. Students, let's open the book of English Ahead student book and we are going to start unit number 5, vocabulary section, vocabulary 1, city living, and the text is about my city Lahore. Students, Lahore is an ancient city and the capital of Punjab and this is a blog post by someone whose family moved from UK to Lahore. The writer talks about where he lives and what is so famous about Lahore. And those who live in Lahore or have visited the city must have eaten delicious foods at the famous food street, shopped in the Liberty Market and Anarkali Bazaar, and toured Anarkali Bazaar for shopping, and they all must have toured the old city to see the Mughal era architecture, prayed in the Badshahi Mosque and visited the Lahore Fort. So you have to read the text carefully and of page number 59 and then you have to come to page number 58 and you have to solve exercise number 1 and 2 on the books. Exercise number 1 says read and listen to the blog post, match the words in the bold to descriptions. Since there are 5 sentences given, you have to read the sentences carefully and after reading you have to refer each sentence to a word on page number 59, the words that are in bold letter like industrial area, suburb, polluted or old city, picturesque, crowded. ये सारे आपके पास जो बोल्ड लेटर्स में वर्ड है, आपने इन सेंटेंसेस को बताना है कि ये जो एक सेंटेंस है वो इन इस पेज नंबर 59 में से किस बोल्ड लेटर को शो कर रहा है. लाइक आपके पास है द सेंटेंस नंबर 1 इज इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी सम वेरी लार्ज कंपनीज हैव देयर ऑफिसेज. सो आई थिंक दिस द सेंटेंस नंबर 1 इज रेफरिंग टू the bold letter word industrial area. So you have to solve the rest of the sentences like in the same way. And exercise number 2 says complete the sentence with the adjectives in the blog post. So on page number 9, some of the bold letter words are adjectives like old city, picturesque, crowded, polluted, and bustling. So you have to fill the exercise number 2 by using the adjectives of the bold letters. For example, the city is really dash because of all the smoke from the factories, cars and lorries. So the blank will be filled by the word polluted and polluted is an adjective. So you have to solve the rest of the sentences in the same way. Now students, come to the workbook of English Ahead. We have to solve page number 37 of workbook of the vocabulary 1 city living. There are 3 exercises given. Exercise number 1 says choose and correct the circle the correct answer. So there are 3 options given. You have to choose the one suitable answer for the sentence. And the exercise number 2 says match sentences 1 to 5 in the exercise number 1 to the photos. Students, जब आप लोग exercise number 1 with the correct option कर लेंगे, उसके बाद आपने इन exercise number 1 के 5 sentences को बताना है कि ये इनमें से हर एक sentence इन जो exercise number 2 की 5 pictures हैं, जो 5 photos हैं, इनमें किसको सूट करता है. फॉर एग्जांपल आपके पास जो ए सेक्शन में जो पिक्चर दी हुई है जिसमें कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं और फैक्ट्री से धुआं वगैरह उठ रहा है, तो आई थिंक द सेंटेंस नंबर 3 फिट्स फॉर ए. देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्ट्रीज in the industrial area
we will say the correct option will be the industrial area, and correct option for A will be 3A. So you have to solve the remaining photos in the same way. And the exercise number 3 is complete the sentence with the words in the box. There are some sentences given. You have to fill the blanks with the appropriate word. And the written work is exercise number 1, 2, and 3 should be done on the loose sheets. Now students, come to the page number 38 of the workbook. On page number 38 there is reading section, top places to live, and there's a magazine blog post. There's a magazine article. There are magazine articles about good places to live for the teenagers. So exercise number 1 says you are going to read a magazine article about good places to live for teenagers. So यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं. आपने इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले इनमें से ऑप्शंस को टिक करना है जो आप ये समझते हैं कि ये जो टॉपिक्स हैं कौन से एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जो कि आप यहाँ पे पढ़ेंगे. आपने ये एक्सरसाइज इस आर्टिकल्स को पढ़ने से पहले करनी है, ठीक है. उसके बाद आपने इन आर्टिकल्स को पढ़ना है जो कि टीनेजर्स के आर्टिकल्स हैं, जो कि जिस टाइप के इन्वायरमेंट में वो रहना चाहते हैं या जो उनकी फेवरेट जगह रहने के लिए, उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया. यू हैव टू रीड द आर्टिकल्स केयरफुली, एंड आफ्टर रीडिंग इट you have to come to page number 39, and exercise number 4 says complete the sentence with words from the magazine article. Use the words in the box. और मैगजीन आर्टिकल से कुछ वर्ड्स दिए गए हैं ब्लॉक में, लाइक अनॉय, क्राइटेरिया, हैंग आउट, पर्सपेक्टिव, स्नैक, स्पोर्टी, ट्राई ऑन एंड वार्म. इनको यूज़ करते हुए आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, एक्सरसाइज नंबर 4 को. And when we come to the exercise number 5, complete the sentences with the words from the magazine article. Use no more than 3 words. आपने इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए आपके पास कोई यहाँ पे वर्ड्स स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं दिए गए हैं, बट यू हैव टू चूज द वर्ड्स फ्रॉम द आर्टिकल ऑफ पेज नंबर 38, एंड द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द page number 38. You have to fill the blank and complete the exercise. So the written work will be exercise number 1, and the second question will be exercise number 1 will be the first question, and second question will be you have to choose the difficult words, and you have to find out the meanings of difficult words from the dictionary, and then you have to add those words in the vocabulary bank. And question number 1, 2, and question number 3 will be about exercise 4, and the exercise number 5 will be dealt as question number 4. So question number 1, 2, 3, and 4 should be done on the loose sheets. Now students, again open the books of English Ahead, student books of English Ahead, and open page number 62, that is language focus 1, correlative conjunctions. So students, conjunctions are used to join the words or clauses like but, because, or. These are the conjunctions, and the correlative conjunctions are the set of conjunctions, are the pairs of conjunctions such as either or, whether or, and neither nor. These are the 3 pairs of conjunctions, and now we will discuss where whether and or is used. Whether and or are to join the 2 clauses. We use them when it does not matter which choice we make. Students, जब आपके पास 2 choices होती हैं और आप उन दोनों में से किसी को भी ऑप्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं वेदर एंड और. फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं वेदर यू प्रेफर अ क्वाइट वॉक और एन एक्साइटिंग एडवेंचर यू शुड विजिट तिवोली गार्डन्स. ठीक है, जब क्या क्या वॉक पे जाना चाहते हैं या आप किसी एक्साइटिंग एडवेंचर पे जाना चाहते हैं, दोनों ऑप्शंस जो हैं वो आपको तिवोली गार्डन्स में मिलेंगी. तो आप इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं, इसलिए आप यहाँ पे वेदर और का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे. इफ़ यू टॉक अबाउट आइदर एंड और, वी ऑफन यूज़ आइदर either when there are 2 real choices. ठीक है, और वेदर और में भी 2 choices होती हैं, लेकिन वेदर और आर में आप दोनों में से किसी को भी ऑप्ट कर सकते हो. लेकिन जब आपने आइदर और यूज़ करना है, इसका मतलब है कि आप उन दोनों चॉइसेस को ऑप्ट करना मुश्किल हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, यू से दैट यू कैन आइदर टेक अ बोट राइड और वॉक अराउंड द हार्बर. वी कैन ऑल्सो यूज़ आइदर और बिफोर द एंटायर clause.
आइदर स्टॉप कंप्लेनिंग और स्पीक टू द वेटर, कि आप या तो आप कंप्लेन करना बंद कर दो या फिर आप वेटर से बात करो। मीन्स आपका खाना जो है वो लेट ऑर्डर हो रहा है, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक काम करो, ठीक है। तो दोनों दोनों ऑप्ट करना मुश्किल हो रहा है कि आप कंप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं और वेटर को भी ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और तो इन दोनों में दोनों चॉइसेस होती हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि आप वेदर और मैं ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप दोनों ऑप्शंस को ऑप्ट करना मुश्किल हो जाता है। और इन दोनों में और वेदर एंड आइदर, इन दोनों केसेस में आप वेदर और आइदर को एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं एंड द मिडिल ऑफ द सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंस ये है कि वेदर जो है वह जब आप इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस यूज़ करेंगे तो आप रेगुलर वर्ब के बाद यूज़ करेंगे। लाइक आप कहते हैं आई डोंट नो वेदर, सो नो इज़ अ रेगुलर वर्ब, यू हैव यूज वेदर after the regular verb. And when you are using either in the middle of the sentence, you are using either before the main verb. For example, you can you can either take a boat ride. So here the take is the main verb and you are using either before the main verb. When we come to the pair neither and nor, we use neither and nor in the same way as either or when the choices are negative and not available, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास दो चॉइसेस होंगी और वो दोनों आपके पास अवेलेबल नहीं होंगी। लाइक यू कैन नाइदर टेक अ ट्रेन नॉर अ बस टू द टाउन, आप ट्रेन भी नहीं ले सकते और बस भी नहीं ले सकते, दोनों चीज़ें इस टाइम अवेलेबल नहीं है, दोनों चॉइसेस आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप उनको डेफिनेटली ऑप्ट भी नहीं कर सकेंगे। तो इस केस में आप नाइदर एंड नॉर यूज़ करेंगे। देन कम टू द एक्सरसाइज नंबर 1, कंप्लीट द ट्रैवल गाइड, यूज़ आइदर नाइदर एंड वेदर। इन तीनों को यूज़ करते हुए आपने इस ब्लॉग जो ट्रैवल गाइड है इसको कंप्लीट करना है। देन कम टू एक्सरसाइज नंबर 2, कंप्लीट द सेंटेंस, यूज द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स एंड आइदर और, नाइदर नॉर एंड वेदर और। इन तीनों पेयर्स को यूज़ करते हुए आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे कि फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, वी कैन आइदर टेक अ ट्रेन टू कुआलालंपुर और अ फ्लाइट टू बैंकॉक। And question number, you have to solve exercise number 1 and 2 on the books, and question number 3 will be you have to write three sentences by using three new sentences by using whether, neither and either. Now students, open your books of novel Moby Dick, and in the previous unit, in unit number 4 of Moby Dick, the white whale, the big white whale, the giant white whale was hunted, and now the business of extracting oil would be started. And when the unit number 5 begins, इसमें आप लोग देखेंगे इन द बिगनिंग ऑफ द लेसन आपको बताया गया कि बहुत, एंड यू कैन ऑल्सो वॉच इन द पिक्चर, देखिए बहुत हैवी चेन्स फिश की बॉडी के अराउंड बांधी गई हैं, और उसके बाद एक स्पेड के ज़रिए उसकी फ़िश की बॉडी में एक बहुत बड़ा सुराख किया गया है, और उसके बाद इस सुराख के अंदर एक हुक डाली गई है, और उस हुक के ज़रिए फिर फ़िश को टॉप पे लेके जाया जा रहा है, फ़िश को शिप के अंदर शिफ्ट किया गया है। जब फ़िश को शिप के अंदर शिफ्ट कर दिया गया तो उसके बाद आप देख सकते हैं द होल बॉडी was then made to roll over several times so that the remaining blubber could be peeled off in the same way that one would peel the skin of an orange. उसके बाद फ़िश की बॉडी को बिल्कुल एक ऑरेंज की तरह डील किया गया, जैसे कि ऑरेंज को आप रोल ओवर करते हैं उसकी स्किन उतारने के लिए, बिल्कुल इसी तरीके से फ़िश के ऊपर से सारा जो उसकी स्किन है, सारी उसका जो ब्लबर है वो रिमूव कर दिया गया है। एंड आफ्टर रिमूविंग द ब्लबर ब्लबर स्टूडेंट्स, उस ब्लबर को स्मॉल पीसेस में काटा गया है, और उस स्मॉल पीसेस में काटने के बाद द ब्लबर हैज़ बीन टेकन टू द ब्लबर रूम, एंड देन दिस ब्लबर इज द पीसेस ऑफ ब्लबर आर बॉइल्ड इन द आयरन पॉट्स कॉल्ड ट्राईपॉट्स। एक स्पेसिफिक किस्म के पॉट्स हैं जिनके अंदर इस ब्लबर को बॉयल किया गया है ताकि उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जा सके। जब उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट हो गया है तो फिर उस ऑयल को वुडन बैरल्स में, वुडन लकड़ी के मेरे बड़े बड़े जार्स हैं जिनमें उसको डाला गया, उसके बाद उनकी जो लिड्स हैं, जो उनकी ढक्कन है, उनको वैक्स से सील कर दिया गया ताकि किसी किस्म की लीकेज का इम्कान ना रहे। कम टू द पेज नंबर 34 नाउ। ब्लबर को रिमूव करने के बाद स्टूडेंट्स जो रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द फिश है उसको बोलते हैं कैरकस, ठीक है। जो डेड बॉडी ऑफ द एनिमल थी उसको बोलते हैं कैरकस, और उस डेड बॉडी को पानी के अंदर फेंक दिया गया है
और पानी के अंदर फेंकने से पहले उस सिर्फ जो फ़िश है उसका जो वेल है उसका हेड जो है वो रिमूव कर दिया गया है। उसके हेड को रिमूव करने का पर्पज़ ये कि उसके हेड से एक वाइट लिक्विड प्रोड्यूस होता है, थिक वाइट लिक्विड प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं स्पर्मेसिटी। ठीक है, और वो स्पर्मेसिटी जो है वो कैंडल्स को मेक बनाने के लिए और लोशन, कैंडल और लोशन को बनाने के लिए यूज़ की जाती है। और ये स्पर्मेसिटी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, और ये अगर आप एक बिग वाइट वेल को आप हंट कर पाते हैं तो उसके बाद वो जो सिर्फ स्पर्मेसिटी है उसके ज़रिए ही आपकी जो शेप वेलिंग जो क्र्यू है उस वो सारे क्र्यू को स्पर्मेसिटी को सेल करके आप बहुत ज़्यादा अमीर बनने के काबिल हो सकते हैं। सो उसके बाद स्टारबक देन द नेक्स्ट पैराग्राफ स्टारबक चोज टेस्टिगो टू कैरी आउट दिस चैलेंजिंग टास्क। सो टेस्टिगो को ये एक चैलेंजिंग टास्क दिया गया है, और वो एक बहुत ब्रेव हार्पूनर है, और टेस्टिगो ने उसकी जो फ़िश का जो वेल का जो हेड है उसके अंदर स्प्रेड के ज़रिए एक बहुत बड़ा सुराख किया, और उस सुराख में इतना बड़ा सुराख किया कि उसके अंदर से आप एक जो बाल्टी है वो गुजार सकते हैं। फिर उसने तकरीबन 18 to 19 जो बाल्टियाँ हैं वो भर भर के स्पर्मेसिटी की निकाली हैं। ठीक है, और तकरीबन 2 घंटे तक टेस्टिगो उस वेल के हेड के ऊपर झुका रहा, और तकरीबन 20 के करीब उसने स्पर्मेसिटी वहाँ से स्पर्मेसिटी निकाली। लेकिन उसके साथ टेस्टिगो के साथ मिसहैप ये हुआ कि जब ये सारा काम कर चुका, सारा ये टास्क उसने अंजाम दे दिया, तो उसके बाद जब वो ऊपर उठने लगा तो जो फ़िश के हेड के साथ जो चेन्स बांधी हुई थी, जो चेन्स रैप हुई थी, वो चेन्स भी खुल गई, और टेस्ट को जाके फ़िश के हेड में गिर गया, और वो चेन्स खुलने की वजह से वो जो वेल का जो हेड था वो सारा पानी में गिर गया।